Good morning, everybody. My name is Narendra Chand. I'm basically from Katima, and I am living in a small town, or you can say village, which is Biria Majola second. So मैं आपके सामने आज आप कुछ बातें करने के लिए आपके सामने आया हूँ। जैसा कि हम लोग अभी कोविड-19 के पीरियड में चल रहे हैं और इट्स वेरी रिस्की टाइम एज एवरीबडी नोज. I'm inside the home and making myself comfortable and staying in the room and being isolated always. It's not about that I'm infected from the coronavirus. It's about to make the people safe or make people to that type of habit to be stay alone and isolated. So because it looks like after vaccination also the people is suffering from the coronavirus, as people is saying, because they already infected from the coronavirus, but when they taken the dose, that time they infected already. So that type scenario also coming in the market, and the people is saying this one. So as per my opinion, that the great way the India already started the vaccine the people, but other countries they already finished their vaccines to all the people because they are very small countries and the population is not too much, so they started already and they finished also. And nowadays they are giving freedom to people that they can stay without mask also, as I have seen in the news that Israel, a country where they give the freedom to the people that can walk or they can go around without the mask. So in India also it can be possible in future, because now it's very risky time because the coronavirus developed itself, because before coronavirus only affecting the nose and the cuff area, but now it's going directly to the फेफड़ों में जा रहा है. तो फेफड़ों में जाने के बाद होता क्या है कि बहुत ही जल्दी आपको इन्फेक्टेड होना शुरू हो जा रहा है और जल्दी ही उसमें ऑक्सीजन की कमी आ रही है इंसान के सांस लेने में. तो ये बहुत रिस्की लग रहा है, और जब आदमी अगर सोचता है इस सारी चीज़ें तो उनका मन वैसे ही रह जाता है कि देयर इज समथिंग लाइक दैट ऑल्सो. द पीपल इज नॉट बिलीविंग सो फार. द पीपल हु इज लिविंग अराउंड द वर्ल्ड और अराउंड द इंडिया इन द कॉर्नर साइड लाइक द विलेजेस, टाउन्स and some cities, once they are not infected, they are very independent. They want to go here, there. They are saying that it's normal, it can be normal. But who people is feeling or they felt already, they are already in the hospitals. They have the feelings. They have something which is they knows that what's going on actually, and they infected already. They know that it is really coronavirus is there. Is really something is there which is affecting people to give difficulty to breathe also. So there is some differences. So if before when coronavirus started, that time the India lockdown, so a lot of people is not worry about the coronavirus. They were worried about the jobs. They were worried about to go here to there, how to go, how to live like that, isolating. इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम. अभी जो सिचुएशन है इंडिया में वो लोगों की ऐसी है कि आप देखिए कोई भी आदमी अपने काम को महत्व ज़्यादा दे रहा है ना कि कोरोना वायरस के इन्फेक्शन को. और ये रियली है, ये फैक्ट है. जो उस चीज़ को सफ़र कर रहे हैं वो उसके बारे में जान रहे हैं, बाकी लोग इतना केयर नहीं कर रहे हैं. लेकिन they want to save their life also, so they want fast in vaccine. So as I seen, I went to in vaccine center in India also, because 45 above there is going on. So when I went there, I saw a lot of crowd there. All old people, they want to vaccinate for themselves. सो वो लोग अपने आप को वैक्सीन करना चाह रहे हैं. और मैंने देखा कि उनके अंदर ऐसी सारी उम्मीदें हैं, ऐसी जीने की इच्छाएं उनके अंदर हैं कि हमको ना कोरोना वायरस हो, हमको ऐसा इन्फेक्शन ना हो. एंड लॉट ऑफ पीपल इज प्रेइंग टू द गॉड ऑल्सो दैट देयर इज सम पावर. इफ द कोरोना वायरस इज देयर, सो देयर इज अनदर पावर ऑल्सो टू डिफीट द कोरोना वायरस.
So some people they praying to God also, because सोच कर भी और समझ कर भी और कुछ एक्शंस देख कर भी लोग समझ रहे हैं कि सही में ये चीज़ हो रही है और अपने आप को सेव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक फीलिंग्स है, एक मेरा आइडिया था, एक मेरे व्यूज़ थे जो मैंने आपके स्क्रीन फ्रंट आप सबके सामने रखे हैं। और ऐसा ही चलता रहा तो हम जल्दी ही इसको रिकवर कर जाएंगे और आने वाले समय में हम लोग बहुत तरक्की करेगा, जैसा कि भारत देश पहले से मोदी जी के अंडर में तरक्की कर रहा था और फिर से एक बार फिर से बूम ब्लास्ट होकर निकलेगा। और कोरोना वायरस जब एक आने वाले समय में एक कहावत रह जाएगी कि कोरोना वायरस एक महामारी आई थी और जिस तरीके से पहले भी ऐसे बहुत सारे महामारी यहाँ पे आई और उसका स्ट्रगल इसी तरीके से हुआ है और जो उस समय थे उन्होंने उस चीज़ को जाना होगा। आज हम लोग हैं तो हम लोग इस चीज़ को जान रहे हैं और हम तो बस ये कामना करेंगे कि सब कुछ सही हो और सब कुछ सुदृढ़ हो। फिर से एक बार फिर से उमंगे जो लोगों की होती हैं कि हमें ये करना है, ऐसा करना है, हमको ये सारी चीज़ें करनी है, हमको इस तरीके की भावनाएं फिर से आए, ना कि ये आए कि हमको कोरोना वायरस ना पकड़ ले और आने वाला समय हमारा भी अंतिम दिन ना हो। तो इस तरीके की भावनाएं ना आते हुए कुछ ऐसी भावनाएं आए कि जिसमें एक आशावादी जो चित्र मनुष्य का होता है वो दिखे। तो इसी की शुभकामनाएं करते हुए मैं अपने व्यूज़ को यहाँ पे विराम देता हूँ। आप सभी को एक मैसेज देता हूँ कि स्टे सेफ और स्टे attentive always what's going on in your surrounding place, because lot of people coming to in your surrounding place but you are not aware what's going on in their family, what's going on inside of their family, so they are not talking. So sometimes you never know that the people infected and coming in front of you and talking with you, so these types things you need to be attentive also. ये और सतर्कता की ज़रूरत है और ये ऐसी ज़रूरत है कि जिसमें 100% आपको इस चीज़ को अपने माइंड में रखकर ही आगे बढ़ना होगा। लोग एक समय था जब किसी को अगर कुछ प्रॉब्लम होता है आपके पड़ोस में तो आपको जाने के लिए सबसे पहले कहा जाता है। अभी वो लोग आपसे ना कहकर वो जानते हैं कि हमको ये इन्फेक्शन हो चुका है तो वो लोग उस चीज़ को नहीं करते हैं। फिर भी कभी ना कभी उनको कोई ज़रूरत आपके साथ पड़ती है तो वो आपके पास आके बोल सकते हैं। तो अटेंटिवनेस की बहुत ज़रूरत है अभी और जागरूकता की बहुत ज़रूरत है। जल्दी से उनको जागरूक किया जाए कि ये कोरोना वायरस ख़त्म हो सकता है, इसका इलाज है और इसको रोका जा सकता है अगर सही समय से ये सारी चीज़ें पकड़ना आनी चाहिए थी। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोग अपना ध्यान रखिए और एक ये मैसेज था, अगर आप सुनने के इच्छुक हैं तो सुनिए और ऐसा मत सोचिए कि मैं कुछ अलग मैसेज आपको देना चाह रहा हूँ। ये मैं वही मैसेज दे रहा हूँ जो ह्यूमन बींग्स की फीलिंग्स होती हैं और जो सोचते हैं और आजकल लोग जो सराउंडिंग्स में चल रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड। कहीं पे बिजनेस है तो वहाँ पे जॉब्स भी हैं, कहीं पे बिजनेस नहीं है तो वहाँ पे कोई भी जॉब नहीं है। सारी कंपनियाँ शट डाउन होने के कगार में पहुँच चुकी थी, अभी फिर से वो बिल्डअप हुआ था, फिर से वो पहुँचने के कगार में है और इस तरीके से बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में इफेक्ट इसमें पड़ा हुआ है। बेसिकली हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री और जो बिज़नेस रिटेल इंडस्ट्री है उसमें बहुत ज़्यादा इसका फ़र्क पड़ा हुआ है। उसके साथ मेडिकल जो फील्ड है उसमें बहुत अच्छा ग्रोथ देखा गया, लेकिन मेडिकल में आपको एक रिस्क जॉब के रूप में देखा जा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इससे जो समाधान फ्यूचर आते रहेंगे तो इस तरीके से वीडियो बना के हम लोग आपस में शेयर करते रहेंगे। कुछ बातें आपको सुनी किसी की चाहिए जो कि कोई बात अगर करना चाहे आपसे किसी भी बारे में, इसके टॉपिक के बारे में, तो आप उसकी बातों को कभी भी इग्नोर ना कीजिए और सुनिए उसको। कोई ना कोई पॉइंट्स वहाँ पे आपके मतलब का निकलेगा और उससे आपको प्रॉफिट ही होता है, कभी लॉस नहीं होता। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे सुना। आगे भी ऐसे हम बातें करते रहेंगे। धन्यवाद। जय भारत।